Hello students, today we are going to study this chapter speed, time and distance, and as usual before diving into the sums I'll explain you a little bit concept about this chapter. I won't go much into details of this, alright, as most of the sums can be solved with the help of the formulas itself, right? And again we'll be solving from the same book, that is Essential ICSE Mathematics for class 7, alright. So now before diving into the sums, let's see few important terms and formulas related to this chapter, alright. Now first of all, there is a specific formula for each and every term out here, alright, for speed, time and as well as for distance. Now let's see what is the formula for distance. Distance equals to speed into time, alright, distance equals to speed into time. Now next one is your time itself. Now if you just remember one formula, automatically your speed formula will derive from this main formula, as well as your time formula will be derived from this formula itself. Again we have taught you to keep a subject, right? In all my other videos I have shown you how to take subject. Now again, if I want to find the formula for speed, so I'll keep speed as subject, alright, I'll keep speed here alone. Whatever is equals to this side, first of all I'll write that. What relation is time with speed here? It's in multiplication, right? So when the bond is broken between them, it will come this side and go into division, because whenever it changes, its sign also changes, right? And opposite of multiplication is division and opposite of subtraction is addition, and vice versa. Now similarly, if I want to find the formula for time, I'll keep time as my subject. I'll keep time alone here this time. Whatever is here, first I'll write that. Distance. Now again, what is the relation of time with speed in this case? They both are in multiplication, right? So when the bond breaks, what will happen? The same thing, it will go this side and go in division. Distance by speed. So this is the basic three formulas that you will be requiring in order to solve all your problems, alright. Now apart from this, there are few other terms as well, okay. Let's see. I hope you have all copied this, you all have copied these formulas, isn't it? These are very basic and very easy formulas. Now there are few other terms, right? One term is uniform speed. You'll find this in few of the questions. This term you'll find in few of the questions. This has got no specific formula, but yes, you have to understand the meaning of this. What do you understand by uniform speed? You know, speed is related with distance as well as time. So what do you understand by uniform speed? When a certain thing, and I am giving you the basic meaning of uniform speed. When a certain thing travels equal distance in equal interval of times. Now what do I mean by that? Suppose this is a 4 meter distance, right? This distance is 4 meter, all right. From here to here, it's 4 meter, right? I have divided into 4 equal intervals: 1, 2, 3 and 4. These are 4 intervals: 1, 2, 3 and 4. All right, all these are 1, 1, 1 and 1 meter, right? Now suppose a person starts running 1 meter. He travel from here, he'll start running, he'll reach over here. What is the distance from here to here? It's 1 meter, right? From here to here he'll run 1 meter. If it takes 1 second to travel 1 meter, right, first 1 meter he has traveled in 1 second. Now again from here to here another 1 meter he'll run, and if he again takes 1 second. Now the third meter, again another 1 more meter, he'll take another
1 second, and the last one, another last 1 meter, it will take another 1 second. So what do you see here? What is one thing that you're finding over here? You're finding that equal distance is traveled in equal interval of times. So for every 1 meter that a person is running, he is taking 1 second. For first 1 meter 1 second, second 1 meter 1 second, third 1 meter 1 second, fourth 1 meter 1 second. So this is the basic meaning of uniform speed. Equal distance in equal interval of time. Same distance, same time throughout the journey. Alright, throughout the journey, same distance, same time. It's constant, right? Now, this was all about uniform speed. Now there is one last thing which is related to speed itself, that is your average speed. Now average speed. Now you know what was the formula of speed I gave you just right now? It was distance by time, right? Now we are talking about average. The basic meaning of average is average means what, you know? It means aggregate of all the terms that are present here. So in speed, what are the terms present? Distance and time. So average means aggregate, you take all in and you add them all, right? So here what are the things given? What is the formula of speed? Basic formula of speed is distance by time. So when average speed comes, they in a question you will generally find average speed when the journey is broken into more than 2 parts. All right, when your journey is broken into more than 2 parts. All right, minimum 2 or more than 2. All right, so what is the formula for average speed? Total distance that one that the person or the anything that has been given has covered by total time to complete that journey, right? No matter how many parts it has been broken into. So when we'll do the problem sums, you'll find the use of this. All right, we'll definitely solve the problem related to average speed as well. Okay, it's very easy. Just note down the formula for average speed as well. All right, apart from this there are no new formulas in this exercise, right? Next we'll do in unit, when we'll do part 2, then there are few other formulas, right? Relative speed, that we'll discuss in part 2 when that thing comes, right? For now, average speed and the few basic formulas related to speed, distance and time that I've already given you. In that, the entire chapter will be covered. Okay, now there is something else. All right, now this was all about formulas related to this chapter. Now one of the basic thing that you need to understand from this chapter and you need to keep in mind as well. All right, there's a logic also behind this, but I don't want to go into the depth of that logic. I'll just give you a short form how to remember when to do 5 by 18 and when to do 18 by 5. All right, so the first question itself that you'll find in this chapter, no matter which book you'll follow, this is the first question that is there in your class 7 pattern. All right, you'll be getting this question in this chapter. The first questions are of this type. It's like convert meter per second to kilometer per hour and convert kilometer per hour to meter per second. Okay, these two conversions. All right, in one case you have to do 18 by 5, that means whatever is given into 18 by 5, and in one case you have to do into 5 by 18. Now in which case what will be done, that I'll tell you right now. All right, so 5 by 18 or 18 by 5.
This is what you need to do. Now in which case what will be done, now we will discuss. Okay, I just want to ask you one thing. It's a very common thing, and I guess and I believe most of you all will know this. All right, if I ask you, I'm talking about this. All right, the first I'm discussing. In this case we need to convert meter per second to kilometer per hour. Now can you tell me which unit is bigger, meter per second or kilometer per hour? Which one is a bigger unit? This meter, kilometer, or second, hour? This one, this entire thing, or this entire thing? I hope most of you all must have answered by now. It is definitely kilometer per hour, because we know kilometer is bigger than meter and hour is greater than second, isn't it? So this is a bigger unit than meter per second. Now that means we are going from small to, in this case we are going from small to big. All right, now focus, listen very carefully and try and understand. We are going to what? You have to see, we are going to what? We are given what? We don't need to focus on what we are given. We have to focus on what we are going to. That means we are going from meter per second to kilometer per hour. That means we are going towards big or small. In this case we are going towards big one, right? So when you go towards big one, you multiply by bigger fraction. Alright, when you go towards big one, you multiply by bigger fraction. Okay, and similarly this one is vice versa. You are going from big to small. You are going from big to small in this case. So this was the case for meter per second to kilometer per hour. That means you are going towards big one. When you go towards big, when you convert towards a bigger unit, you do into 18 by 5. Now when you go towards smaller unit, that means kilometer per hour is given to you to meter per second. That means bigger is already given to you, and they are asking you find the smaller unit. All right, they are asking you to go towards smaller unit. When you go towards smaller unit, you will multiply by smaller fraction, 5 by 18. When you go towards bigger unit, you will multiply by bigger fraction, that is 18 by 5. All right, this was the basic thing. Now note this and keep it in your mind. All right, we'll be using this, and now we'll straight away jump to the chapter. All right, and we'll solve few problems related to this. Okay student, so this is the first question. Convert to meter per second. This is the question given to you. 72 kilometer per hour. You need to convert this one into meter per second. That means bigger unit is given to you, and you're going towards smaller unit. I always told you, you have to see to which side you're going, to greater or to smaller. You're going to meter per second. That means you're going towards smaller. Bigger is given to you, and they are asking you to go to smaller unit. All right, when you go to small, what you do? You multiply by smaller fraction into whatever number is given. You'll write that number, and then you'll decide whether I have to do 18 by 5 or 5 by 18, depending on which one you're going. In this case you're going towards smaller, so you'll multiply by smaller fraction, and smaller fraction means smaller numerator, 5 by 18, smaller numerator. Now now let's cut it. We know 9, everyone should know the table of 9, right? 9 2s are 18, 9 8s are 72, 2 4s are 8, and 5 4s are 20. We have converted from this to meter per second, so 20 meter per second. This is your answer. Okay, this is your second question, right? Convert to kilometer per hour. So what is given here in this question? 2.5 meter per second. So here you have been given a smaller unit, and they want you to go from smaller to big, small to
big. So which side are you going? To big. So whatever is given 2.5 into, when you are going to big one, bigger unit, so you have to multiply by bigger fraction. Bigger fraction माने greater numerator, 18 by 5. Now this is in decimal. I hope you know, when we remove this decimal, what we do? We divide the entire thing by 10. Why 10? Because depending on the number of digits after decimal, we put the number of zeros. Isn't after digit there was, after decimal there was only one digit, so we have put only 1 0. 1 0 means tens. Now we'll try and cancel this out. 5 5s are 25, 5 2s are 10, and then 2 9s are 18. So that means finally we have only 9 into 1s are 9, and 1 into 1 means 1 only. So denominator, there is no, whenever there is 1 in the denominator, there is no need of writing the denominator, right? So just multiply numerator with numerator, that is 9 into 1 means 9, and you have converted from smaller to bigger, that means 9 kilometer per hour. This is your answer. Okay students, so this is the next question. A panther runs at the speed of 80 km per hour. What distance will it cover in 90 minutes? ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अब हम देखते हैं क्या क्वेश्चन का मतलब है. एक पैंथर 80 किलोमीटर पर आवर में दौड़ता है, ठीक है. वर्ड बोल रहा है कि 90 मिनट में वो कितना डिस्टेंस दौड़ लेगा. तो यहाँ पर हमको दो डिफरेंट यूनिट दिया है ना. यहाँ बोल रहा है किलोमीटर पर आवर. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझ रहे हैं. इसका अगर हम ब्रेक करके बोले तो क्या एग्जैक्ट मीनिंग है इसका, कि वो 1 घंटा में 80 किलोमीटर दौड़ लेता है. 1 घंटा में देखा जाए तो वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा एक पैंथर. ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल जाएगा. तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 90 मिनट. तो यहाँ हमको तो घंटा का हिसाब से बताया है, 1 घंटा में 80 किलोमीटर जा सकता है. तो यहाँ मिनट में पूछ दिया है, तो यूनिट सेम नहीं है ना. तो मेरा काम क्या है, पहले इसको भी सेम यूनिट में लाना. इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में. पहला मेरा काम क्या है, जो हमको क्या दिया हुआ है, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला है हम उसको लिखते हैं. पहले स्पीड कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर है ना. और हमको क्या दिया है, टाइम कितना दिया है, 90 मिनट. तो ये 90 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में, है ना. मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जैसे अगर कन्फ्यूजन है बाई करना है कि इंटू करना है, तो देख लीजिए. 1 घंटा में, अगर घंटा को 1 घंटा में हम बोलेंगे कितना मिनट है, तो आप इमीडिएटली सब बोल देगा ना, तो 60 मिनट. तो ये 60 आया कैसे, क्योंकि घंटा को जब हम मिनट में करते हैं तो 1 तो था ही, मिनट में करने बोले ना 1 घंटा को, तो 60 मिनट कैसे बोल दिए, क्योंकि आप उसमें इंटू 60 किए थे, इसीलिए 60 मिनट आया था. 1 घंटा में 60 मिनट आता है क्योंकि उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब सिमिलरली जब मिनट देता है तो ऑपोजिट होगा, क्या होगा, एक बार इंटू करेंगे 60 से, जो उस टर्म से इंटू होता है उसका ये वापस पहुंचने के लिए उस टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 60 से, है ना. 1 घंटा में 60 मिनट इमीडिएटली बोलते हैं इंटू 60 कर देना है. तो वापस हमको चाहिए कि मिनट में आना है आवर से, तो क्या करना होगा, बाई 60 कर देना होगा, तो हम आवर पहुंच जाएंगे, है ना. मिनट दिया हमको, वापस 1 में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको वापस इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तब ना इसको कट के मेरा वापस 1 बच जाएगा जो घंटा हो जाएगा. सिमिलर इसको कर देंगे हम, तो मेरा क्या आ गया, 9/6. और सिंप्लीफाई हो सकता है, देखते हैं. दोनों 3 से कटेगा, 3 2 जा 3 3 जा, सो 3/2 आवर्स. 3/2 आवर्स ये मेरा आ गया घंटा में. अगर हम 90 मिनट्स को आवर्स के टर्म्स में बोला जाए तो वो क्या होता है, 3/2 आवर्स, है ना. सो अब हमको चाहिए क्या, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा. एकदम सिंपल सा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हम लोग को. क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. क्या स्पीड से दौड़ता है वो, 80
80 का स्पीड से वो दौड़ रहा है 80 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर लेता है, 1 घंटा में 80 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। अभी वो 3/2 आवर्स मतलब 1.5 घंटा है कि नहीं? तो 3/2 43 ज़ा 120 किलोमीटर, वो कितना 120 किलोमीटर वो यहाँ लिख ले रहे हैं, 120 किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेगा, है ना। वो 1.5 घंटा में, 90 मिनट में 1.5 घंटा में वो कितना दौड़ लेगा? 120 किलोमीटर। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए 1 घंटा में वो 80 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो 90 मिनट मतलब मेरा 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटा होता है 90 मिनट मतलब। लिखेंगे हम इसको, बस हम आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि ज़्यादा होगा या कम होगा। ये इसका मतलब क्या है कि वो पैंथर जो है 1 घंटा में 80 दौड़ सकता है। अब वो 1.5 घंटा के लिए दौड़ा है, 1.5 घंटा तक दौड़ा है, तो 80 तो पहुँचा ही होगा, और आधा घंटा में और कुछ डिस्टेंस दौड़ गया होगा, है ना। आधा घंटा में और आधा डिस्टेंस दौड़ गया होगा। 60 मिनट में 80 दौड़ता है, तो 30 मिनट में और 40 दौड़ा होगा, वो दिख के 120 हम लोग आ गया है, इज़न्ट इट। बस यही कॉन्सेप्ट था, 120 किलोमीटर दौड़ा है आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एवरेज स्पीड। नाउ लेट्स गो थ्रू इट। अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इज एवरेज स्पीड। तो एक आदमी है, मान लीजिए, हाँ, वो ये 6 किलोमीटर का सपोज डिस्टेंस है, वो चलता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है ना, और फिर यहाँ से वो रिटर्न आएगा भी। तो जाते वक्त ये जब ये जर्नी हो रहा है, इसका जाने का जर्नी हो रहा है, तो स्पीड कितना है उसका? 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। और जब वो वापस आ रहा है यहाँ से, यहाँ का जर्नी जब वो कर रहा है, तब वो कितना स्पीड मेंटेन रख रहा है? अपना स्पीड घटा दिया, चल के आने का 10 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, तो अब हम लोग को बोल रहा है फाइंड इज। ये देखिए पिक्चर समझ में आया? जब जा रहा है 6 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 6 है। तो वो जब जा रहा है 12 किलोमीटर के स्पीड से जा रहा है, जब आ रहा है 10 किलोमीटर के स्पीड से रिटर्न आ रहा है, राइट। अब हम यहाँ पर एवरेज स्पीड हमको निकालने बोला है। एवरेज स्पीड हम जानते कि अभी फॉर्मूला लिखवाए थे ना, क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हम देखते हैं, हमको ये फॉर्मूला मालूम है, टोटल डिस्टेंस, तो हमको तो ये साफ दिख रहा होगा, टोटल डिस्टेंस है ना। वो 6 किलोमीटर गया है और 6 किलोमीटर रिटर्न आया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका? चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस उसका हो जाएगा 6 + 6 दैट इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। अब हमको क्या चाहिए? टोटल टाइम। तो यहाँ पर तो हमको स्पीड दिया है, तो सबसे पहले तो हमको टाइम निकालना है, इज़न्ट इट। तब ना हम यहाँ पर टोटल टाइम, जाने में उसको कितना समय लगा और वापस आने में कितना समय लगा, है ना। जितना भी होगा, लेकिन एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, जा रहा है ज़्यादा स्पीड से वो, तो मतलब टाइम उसको इसमें, और सपोज़ आप यहाँ पर 12 किलोमीटर आप ही है वो, और यहाँ पर आप 12 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे हैं और आते वक्त 10 किलोमीटर कर दिए, तो यहाँ पर जल्दी पहुँचे होंगे ना, वापस यहाँ पर जल्दी पहुँचे होंगे। ऑब्वियस सा बात है, जहाँ स्पीड ज़्यादा किए होंगे उधर जल्दी पहुँचे होंगे, और इधर रिटर्न में इससे कंपेयर करा जाए, ये वाला डिस्टेंस से कंपेयर करा जाए, तो यहाँ पर आप और लेट पहुँचे होंगे, इज़न्ट इट, क्योंकि यहाँ पर अपना 12 से 10 कर दिए थे स्पीड। स्पीड स्लो होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, इज़न्ट इट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए मेरा दोनों तरफ 6 किलोमीटर ही ट्रैवल हुआ है मेरा, इज़न्ट इट। तो अब यहाँ जाने का जर्नी कितना टाइम लगा है
है ना। जाने का जर्नी का टाइम हम देखते कितना लगा है हमको। अच्छा यहाँ देखते हैं जाने का जर्नी में, मतलब टाइम टेकन टू रीच कितना होगा। अच्छा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना, टाइम किस पे होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है जाने का 6 किलोमीटर, और किस स्पीड से आप गए हैं 12 का स्पीड से गए हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक 12, सो 1/2। 1/2 किस यूनिट में टाइम निकला है आपका, किलोमीटर है आवर में है, किस यूनिट में है यहाँ टाइम, आवर में है ना, आवर में होगा आपका। हाफ किलो आपको आधा घंटा लगा है, हाफ आवर मतलब आधा घंटा लगा है पहुँचने में उधर। अब रिटर्न का जर्नी का टाइम देखते कितना लगा है। यहाँ पर आप स्पीड आस्ते कर दिए ना, चाहे जितना भी होगा, लेकिन हमको क्या मालूम है आधा घंटे से ज़्यादा होगा या कम होगा। आपका स्पीड कम हो गया है तो पक्का आधा घंटा से आपको ज़्यादा, आधा घंटा से अब आप और आस्ते आस्ते रिटर्न आ रहे हैं तो पक्का आधा घंटा से ज़्यादा समय लगा होगा वापस आने में यहाँ पर, है ना। कितना एग्जैक्ट कितना समय लगा है वो निकाल लेते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। टाइम टेकन टू कम बैक कितना होगा। चलिए ये वाला डिस्टेंस हमको जो मिला है आधा घंटा, ये हम नोट डाउन करके रख ले रहे हैं। हाफ आवर। टाइम टेकन टू कम बैक क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, डिस्टेंस बाय स्पीड, इजंट इट। हमको एक टाइम मिल गया, अब हम सेकंड रिटर्न का टाइम खोज लेते हैं। डिस्टेंस वो अनचेंज्ड है, गए थे अगर 6 किलोमीटर तो वापस भी तो 6 किलोमीटर ही आना होगा वापस पहुंचने के लिए। 6 किलोमीटर। स्पीड कितना है इस बार 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 2 5 दैट इक्वल्स टू 3/5, इजंट इट। तो आते वक्त आपको 3/5 आवर्स लगा है। अब मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 12 निकल गया है, टोटल टाइम देके कितना निकलता है। टोटल टाइम जाते वक्त आधा घंटा प्लस आते वक्त 3/5 आवर। इसका एलसीएम करेंगे तो आपका क्या आएगा 10। एलसीएम करके देखिएगा 5, क्योंकि 2 5s are 10, 5 1s are 5 प्लस 5 1s 5, 2s are 10, 2 3s are 6, जो क्या हो गया 11/10। तो टोटल कितना टाइम लग गया 11/10 आवर्स, है ना। अब हम इसको सिंपली ये फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला में, जो मेरा मेन फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस, मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपको कितना ट्रैवल किए, 6 जाने में 6 आने में, तो 12, टोटल डिस्टेंस 12 था। और टोटल टाइम आप निकाल लिए कितना लगा है 11, और ये बाई 10 है, ये क्या होगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके इनटू में चल जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा, है ना। तो ये 120/11 बस। तो आपका आंसर 120/11 हो सकता है क्या, किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होगा 120/11 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 670 किलोमीटर इन 6 आवर 5 मिनट्स। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 670 किलोमीटर कवर कर लेता है 6 घंटा 5 मिनट में। ठीक है, इफ़ इट कवर्स 390 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर। अगर वो क्या है कि इतना डिस्टेंस वो, इफ़ इट कवर्स फर्स्ट, ये फर्स्ट होना चाहिए है ना, फर्स्ट
390 किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर। वो पहला 390 किलोमीटर, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक, ये दिखा रही है मेरा पूरा बोर्ड जो है, ये आपका पूरा 670 किलोमीटर का है ना। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 390 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 390 किलोमीटर है। तो ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक का जर्नी 670 किलोमीटर वो 6 घंटा 5 मिनट ले रहा है कवर करने में। 5 मिनट है, तो अगेन मिनट को मेरा काम है आवर में कन्वर्ट करना है कि नहीं। मिनट दोनों डिफरेंट यूनिट का नहीं रख सकते। अगेन मिनट को आवर में करने के लिए क्या है, इससे पहले प्रीवियस में भी बोले बाई 60, तो ज़ीरो हटा ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 5 12, सो 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो 6 1/12 ये आवर है। तो इसको हम अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदले तो 12 6 72, 173/12 आवर्स। सो बेसिकली जो 6 घंटा 5 मिनट दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं एग्जैक्टली इन आवर के टर्म्स में, 73/12 आवर्स। तो सॉरी, ये मेरा 670 किलोमीटर तो था ही, ये मेरा आवर के टर्म में हम इसको पूरा को कैसे लिख सकते हैं, 73/12 है ना। ये आया था मेरा 73/12 आवर्स। हाँ, अब देखिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन यहाँ से सपोज स्टार्ट किया था, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक सपोज 390 का जर्नी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 390 किलोमीटर वो ट्रैवल किया, और किस स्पीड में किया, 90 किलोमीटर पर आवर। वो पूरा यहाँ से यहाँ इतना घंटा में ख़त्म कर चुका है। और ये वो बोल रहा है, और ट्रेन यहाँ से यहाँ तक का जर्नी 390 तक का जर्नी वो 90 किलोमीटर पर आवर में किया है, 90 किलोमीटर पर आवर में किया है वो यहाँ से यहाँ तक का जर्नी, ठीक है। तो अब हमको यहाँ का डिस्टेंस मालूम है, पहला इतना डिस्टेंस कवर किया है और इतना स्पीड में किया है यहाँ तक का डिस्टेंस कवर। तो यहाँ तक में कितना टाइम में वो पहुँच गया है, देखते हैं। पूरा डिस्टेंस वो इतना टाइम में पहुँच गया, ये माथा में रखिएगा। हाँ, वो पूरा डिस्टेंस 670 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटा 5 मिनट में पहुँच गया, मतलब 73/12 आवर्स में ऑलरेडी वो रीच कर गया अपना डेस्टिनेशन 670 किलोमीटर का। तो पहला 390 किलोमीटर इतना स्पीड, इतना रफ्तार में चलाया है वो। तो कितना घंटा में वो यहाँ पर पहुँच गया है, लेट्स सी। टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, 390/90, 39/9 आवर्स। वो यहाँ से यहाँ तक 39/9 आवर्स में पहुँच गया है ना। अब उसके पास यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस बचा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 390 चल गया है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए भाई 670 में 390 आ चुका है वो। कितना डिस्टेंस अभी भी, और उसको कवर करा दीजिए इसमें से 280 उसको, और उसको अब यहाँ से यहाँ तक का फाइनल लास्ट जर्नी उसका 280 किलोमीटर है उसके यहाँ, उसको और 280 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना। अब क्या है कि टोटल जर्नी हमको बोल दिया है कि उसको 6 घंटा 5 मिनट में कंप्लीट करना है, वो ऑलरेडी इतना घंटा ले चुका है। दो हमको देखिए, हमको ये दिख रहा नहीं है कि एग्जैक्टली वैल्यू कितना है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते हैं इसको कि उसको टोटल जर्नी उसको 10 घंटा में कंप्लीट करना है ना। अगर अब ये हम बोलते हैं, देखिए अब हम सिंप्लीफाइड, पहले हम फ्रैक्शन की जगह सिंप्लीफाइड वैल्यू में हम दिखा रहे ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। ये 10 घंटा में उसको 670 कंप्लीट करना था। अगर वो 390 किलोमीटर वो 6 घंटा में कवर, अगर वो इतना 6 घंटा लगाता यहाँ से 390 किलोमीटर पहुँचने में, तो उसको बाकी का बचा हुआ कितना घंटा में पूरा करना था, क्योंकि उसको पूरा तो अगर 10 घंटा में करना था, तो बचा हुआ इतना 280 किलोमीटर उसको जैसे भी करके कितना घंटा में पूरा करना है। 6 घंटा यहीं ले लिया है, 10 घंटा टोटल टाइम उसको मिला है, 6 घंटा यहीं पर अगर वो लगा दिया है, तो बचा हुआ उसको 4 घंटा में पूरा करना ही होता। ये डिस्टेंस उसको 4 घंटा में पूरा करना ही होता। अगर ये 10 रहता, तो अगर ये पूरा राउंड वैल्यू में रहता, तो मेरा एकदम माथा ऑटोमेटिकली काम कर जाता कि नहीं। 10 टोटल है, 6 घंटा लगा दिया है वो, तो बचा हुआ 280 में उसको 4 घंटा में पहुंचना ही है। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या दिया है,
ना 10 दिया है ना ये दिया है, लेकिन 10 नहीं दिया है तो क्या लॉजिक मैथ्स का चेंज होता है, चाहे राउंड वैल्यू रहे, चाहे फ्रैक्शन रहे, चाहे डेसिमल रहे, जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पर बचा हुआ कितना है, इतना टोटल घंटा उसको टाइम मिला था, यहाँ 10 के जगह ये है, 6 के जगह इतना वो यूज़ कर चुका है, 6 के जगह इतना घंटा वो यूज़ कर लिया है। तो ये जर्नी को उसको कितना टाइम मिला है कंप्लीट करने के लिए, 73/12 टोटल टाइम से इतना जितना वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका है उसको हटा देंगे, 39/9 है ना। तो अब हम इसका एलसीएम देखते हैं, 73/12 माइनस 39/9, इसका मैं एलसीएम देखें तो आप इसका एलसीएम करेंगे तो आप जब एलसीएम कर लीजिएगा इसका 36 आ जाएगा एलसीएम पे, राइट। तो 12 3 इंटू ये करने पे आपको क्या मिलेगा 9, 219 माइनस 9 चुके आप ये 9 4 4 9 36, 3 4 12 156 ये मिलेगा आपको। हाँ, यहाँ पर अब इसका क्या आ गया 219 माइनस 156, 219 माइनस 156, 9 6 3 गया 11 5 6 आया और तो 63 आया, 63/36 इजंट इट। तो हम इसको इससे घटा रहे हैं तो मेरे पास कितना घंटा बचा है ये जर्नी कंप्लीट करने के लिए, 63/36, 63/36। इसको हम जब घटा के किए तो मेरे को इतना घंटा में उसको 280 किलोमीटर का जर्नी ख़त्म करना ही है। तो उसको अब हमको ये डिस्टेंस मिल गया है, क्योंकि 390 चल गया था तो 280 बचा है, उसको ये 280 का डिस्टेंस उसको कवर करना ही है। और इतना टाइम उसको ऑलरेडी वो ले चुका है, टोटल इतना टाइम में से इतना वो ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, तो बचा इतना टाइम। अब उसको इतना डिस्टेंस इतना टाइम में करना ही है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इट स्पीड फॉर रेस्ट ऑफ द जर्नी। तो मतलब बचा हुआ जर्नी में कितना स्पीड से वो चलेगा ताकि ये टाइम में कंप्लीट कर ले। अगेन एकदम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, किसका यूज़ करना है अब हमको, स्पीड हमको निकालना है ना। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। कितना जर्नी को कवर करना है 280 को, और कितना टाइम में कंप्लीट करना है, इतने घंटा में कंप्लीट करना है ना, इतने ही टाइम में, 63/36। तो अगेन ये डिनोमिनेटर है, ऊपर आके क्या हो जाएगा इंटू 36। अब हमको मालूम है दोनों 9 से दोनों ही जाता है ना, 9 7 ज़ा 9 4 ज़ा 7 इंटू 4 ज़ा 28 1 0 4 4 ज़ा 16 फॉलोड बाय 1 0। तो 160 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ट्रेन को ट्रैवल करना होगा, सो दैट वो अपना जर्नी पूरा कर ले। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा लेंदी गया है ना, सो इसको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 3 बार 4 बार देखिए और स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कॉन्सेप्ट बताते हुए जा रहे हैं ना उस हिसाब से फॉलो करते हुए और कॉपी में लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। अपने आप 3 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किस अप्रोच कैसे करते रहना है, कि मेरा थॉट प्रोसेस किस हिसाब से जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के, ठीक है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, सो इसका आंसर ये आ गया, राइट। तो अब क्या है कि जितना और बचा हुआ क्वेश्चंस है इस पार्ट से, पार्ट ए से, उसको पार्ट 2 में करते हैं, एंड देन नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेक्शन का क्वेश्चंस जो पार्ट बी का क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में कवर और कर लेंगे, राइट। ठीक है।